Diyadi, the nature is the greatest gift. We have been provided us with life, beauty and inspiration. Like how we just witnessed a journey celebrating the wonders of nature by our tiny tots. But Shubhangi, let's not forget that we are under threat. We are choking with the harmful pollutants present in the air. Truly though, Didi, but the young students of our school greatly reminded us how important the nature is for our survival. Huge and wonderful round of applause for our wonderful thoughts representing the nature's beauty. Resounding welcome to our esteemed guest, Miss Dwiza Gatwal, Joint Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad. A shining star of our school, Palak Bhati, with unwavering dedication and a newer, give-up attitude. Palak has achieved an All India rank of 229 and secured rank 102 among girls. This remarkable feat is a testament to her hard work and determination. To honor her incredible achievement, I would like to invite our chief guest, Chairman Sir and respected Principal Ma'am to the stage. Let's welcome them with a huge round of applause. Championship. Under 62 to 63 kg category, Kanak has challenge. Let us all put together our hands and warmly welcome Kanak Chandila to the stage for her moment of glory. Theme of our annual function, Yuga Avlokan. The Yug cycle is a cyclic timeline of cosmic and divine ages in Hinduism. These ages represent the life stages of the universe. Inspired by the four Yug from the rich cultural heritage, our scholars will take you on a captivating journey through Satyug, the era where good and evil existed in separate realms. Treta Yug, The era where good and evil coexisted on earth. Dwapar Yug, The era of transition and great epics of Sri Krishna. Kal Yug. The era where righteousness faces challenges. Through music, dance and drama, our students will bring alive the myths, legends and stories that have shaped our civilization. As we conclude our segment, we invite you to witness the captivating performances that will take you through the distinct Yug, each brought to life with its own Yugavlokan. We hope you enjoyed this gracious journey through time as we bring together Yugavlokan. भाई सामने से देखो ना, आप देखो इससे नहीं, इससे पूरा पूरा साइड करेगा जो सामने आस-पास लाइट लगेगा, इनके तो मुंह पे फेस पे लाइट है, पीछे भी लाइट है, अपने आँख तुम्हें कंट्रोल पता है ना इसमें, इसलिए कंट्रोल कर देगा ये ना, बस ये लाइट के लिए लाइट पे जाता है। हे विश्वेश्वर प्रणाम। हे पद्मना, मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ? हे श्री हरि, मुझे अस्तित्व दिया है तो पहचान भी दीजिए, परिचय भी प्रदान हो गया कर लिया। जो मैं हूँ वही आप है और जो आप है वही मैं हूँ। मैं विष्णु हूँ, आप ब्रह्मा है और आप महेश। हम तीनों एक ही अस्तित्व के तीन रूप हैं। हम त्रिमूर्ति हैं। परंतु हे प्रभु, मेरे होने का उद्देश्य क्या है? हे ब्रह्मा, अभी सृष्टि की रचना होनी है, संसार का निर्माण होना है, जीवन का जन्म होना है और यह सारे कार्य आपको ही तो करने हैं। आप विधाता हैं, जीवन में जन्म देने वाले जीवन दाता है। हे परमेश्वर, मेरी रचना क्यों हुई है? हे महेश, हे शिव शंकर, निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु एक क्रम है, एक चक्र है। जो बना है उसे समाप्त भी होना है, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी आनी है। यह क्रम चलता रहेगा, यही प्रकृति का नियम है। आरंभ ब्रह्मा है और हे महेश, आप अंत है और आप दोनों के बीच में मैं स्वयं विष्णु पालन करता हूँ। हे ब्रह्मा,
हे विधाता, सृष्टि की रचना का शुभारंभ कीजिए। नारायण की अनुमति से ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का श्री गणेश किया। मिलाकर त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने की। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। साल के साथ साथ युग भी बदल जाते हैं। प्रत्येक युग की अपनी गाथा है। आइए आपका परिचय हमारे युग से कराते हैं। मैं युग हूँ। कई घटना चक्रों को अपने भीतर समाये, निरंतर परिवर्तन के सत्य को अपने हृदय में धारण किए, मानव के समक्ष उपस्थित रहा हूँ। मैं आदि हूँ, अनंत हूँ, सूक्ष्म हूँ, अवश्यम भावी हूँ। मैं आता रहा हूँ, बदलता रहा हूँ। सृष्टि के निर्माण और विनाश की गाथाएं लिखता रहा हूँ। मैंने इस सृष्टि को शाश्वत बनाने हेतु कई करवटें बदली हैं। मैं इस पृथ्वी की कहानी हूँ और आज यह कहानी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह कथा है चारों युगों की। यह कथा है सृष्टि के संतुलन की। संतुलन जीवन का आधार है। यदि रात है तो दिन भी है। यदि पाप है तो पुण्य भी है। सृष्टि में सब कुछ संतुलन की डोर से बंधा है, और जब यह डोर शिथिल होती है तब भगवान इस डोर को कसने स्वयं आते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है सतयुग से। सतयुग वह युग था जब धरती पाप से मुक्त थी। सतयुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा था। सत्य, तप, पवित्रता और दान। सतयुग वह समय था जब अमृत की इच्छा से देवताओं और असुरों ने सागर मंथन करने का निर्णय लिया। मथनी बने मथुरांचल पर्वत, डोरी नाव वासु की। मंथरांचल का भार उठाया नारायण के तृतीय अवतार ने। वासुकी का एक छोर पकड़ा देवताओं ने तो दूसरा पकड़ा असुरों ने। एक ओर से देवगण खींचते तो दूसरी ओर से सारे असुरगण। इसी घर्षण से शुरू हुआ सागर का मंथन। देवराज इंद्र ने युक्ति से वासुकी के नाक का मुख असुरों की ओर कर दिया था, जिससे जब जब वासुकी के मुख से विष निकला तब तब आघात असुरों को ही हुआ और यह मंथन चलता रहा। क्योंकि श्रद्धा किसी रत्न या किसी उपहार की नहीं, प्रतीक्षा केवल अमृत की थी। तब अचानक लगा कि अमृत मानो मिलने ही वाला है, परंतु जहाँ अमृत था उससे ही पहले प्रकट होता विष। समस्या के हल के पूर्व भयानक हलाहल आया। इस कालकोट रूपी हलाहल के कोट से ना असुर बचे ना ही देवता। लगा दोनों का अंत आज हो ही जाएगा, किंतु जब जब संकट अचल लगे तब संहारक अश्लेष होते हैं। जब जब प्राण संकट में हो तब रक्षक महादेव होते हैं।
उत्थान किया और कठिन कार्य के बाद सभी देवगणों की वापसी हो जाती है और सृष्टि सृजन के एक महत्वपूर्ण कार्य का अंत हो जाता है। परमपिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की लीलाओं को जानना इस जगत के लिए रहस्य बना हुआ है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको कैलाश पर ले चलते हैं। महादेव, महादेव, अपने नेत्र खोलिए स्वामी, अपनी अर्धांगिनी की दुविधा का समाधान कीजिए प्रभु। देवी, क्या हुआ? आपका मन इतना विचलित क्यों है? आप सर्वज्ञ है प्राणनाथ। मैंने आज एक स्वप्न देखा जिसे देखकर मेरा मन विचलित हो उठा है। कैसा स्वप्न देवी? क्या देखा आपने? अग्नि की ज्वाला में लिपटी हुई एक स्त्री की काया को आप हाथों में लेके खड़े हैं। रौद्र रूप में द्रवित हो आप सती सती पुकार रहे हैं। आखिर कौन है ये सती और उनका आपसे क्या संबंध है? पार्वती, आप ही तो थी सती, दक्ष की पुत्री और मेरी अर्धांगिनी। अब सुनो आगे की कथा। Da
डीजे का वो बंद करवा देना, लाइट ज़्यादा ब्लू पड़ेगी। कहाँ है कार? पीछे बैठा तुम्हारे, वो यही करा। संगम तेरा मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया सैया चंदा बाहों में तुझ में हो जाऊं, तेरे नाम में हो जाऊं सैया सैया। ये नरम नरम नशा है बढ़ता देता अब बावला हुआ मन जग हो गया है रोशन, ये नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, और प्रेम की पुजारन मंदिर और उनके साथ अपने विवाह का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व आदि को आमंत्रित किया, किंतु अहंकारवश उन्होंने शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने शिव से निवेदन किया, प्राणनाथ, पिताश्री ने महायज्ञ का आयोजन किया, दूर दूर से इसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हो रहे हैं। निमंत्रण ना होने के कारण शिव सती को जाने से मना करते हैं। सती शिव के मना करने के बाद भी पिता के घर पहुंच गई। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती, हमें अत्यंत दुख है कि तुम अकेली आई हो। कहाँ है तुम्हारा शिव? पिताजी, कृपा कर महादेव के लिए कुछ अपशब्द ना कहें। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने विवाह किया और मेरी प्रतिष्ठा को तुमने धूल में मिला दिया। जो भूल तुमने की थी उसका तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम्हें क्या लगा तुम्हें मैं क्षमा कर दूंगा? भूल तो आपने की है पिताजी। आपका दिया हुआ सुख और वैभव मेरे महादेव के दिए हुए प्रेम और सम्मान के आगे तिनके के समान है। इस अपमान के लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। इस हवन कुंड में आहुति होगी, महाआहुति।
और यहाँ शुरू हुआ शिव तांडव। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। क्षमा करें महादेव। 13वीं सदी के घोर अपमान का दंड है ये।